Hello students, in this video I am going to share solutions to the questions that you asked followed by vector calculus. I remember only two or three students had problems, and in total they asked me these three questions. So the question 1 that you asked is that if alpha and beta are imaginary cube roots of unity, then prove that alpha e to the alpha x plus beta e to the beta x is equal to this expression that you see. So first of all, let us find what are alpha and beta. So you know that the imaginary cube roots of unity, you know that the cube roots of unity, we have three cube roots of unity, 1, omega and omega square. And if you talk about imaginary cube roots of unity, then omega and then only omega and omega square are the imaginary cube roots of unity. But this omega and omega square will not do the purpose here. We need to find those imaginary cube roots of unity. So for that purpose, I am going to solve x cube equals 1. Why? Because we have to find 1 to the power 1 by 3. So if 1 to the power 1 by 3 is x, it means that x cube will be equal to 1. If x cube is equal to 1, so you have to find zeros of this, or you have to find roots of this polynomial of degree 3. For that purpose, I am going to factorize this x cube minus 1. If I factorize this using the formula a cube minus b cube equals a minus b, a square plus ab plus b square, then one factor gives me x equals 1, and the other factor, by solving for its roots, by solving by that famous Sridharacharya rule, we get minus 1 plus square root of 1 minus 4 over 2. Square root of 1 minus 4 is the square root of minus 3, and that is root 3 iota. So we are getting minus 1 over 2 plus minus iota root 3 by 2 as the complex roots. So what we are going to do, we just ignore this x equals 1 because alpha and beta are the imaginary, or you can say the roots, the cube roots of unity, which have some imaginary part, imaginary component. So suppose this with plus sign gives alpha and with minus sign this gives you beta. So we have obtained alpha and beta here. We know that if alpha and beta are two roots of a real polynomial or a quadratic, here as in case of this x square plus x plus 1, इसके जो roots हैं वो alpha और beta हैं, so वो हमेशा एक दूसरे के conjugate होंगे. अगर आप if you just take conjugate of this alpha by replacing this I with minus I, you are going to get beta. और एक बहुत ही important और बहुत ही useful बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि if beta and alpha are complex conjugate or conjugate of each other, तो जो alpha और beta के terms में expressions होते हैं वो भी complex conjugate एक दूसरे के हो जाते हैं. So if alpha and beta are complex conjugate of each other, then f alpha, any function of alpha, and same function of beta are also complex conjugate of each other. So here what you do is you just find the value of alpha e to the alpha x, और alpha e to the power alpha x की वैल्यू को a plus ib की फॉर्म में, मतलब alpha e to the power alpha x को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करके लिख लेंगे, और उसके बाद में अल्फा के प्लेस पर अगर हम लोग बीटा पुट करेंगे तो हम लोगों को बीटा ई टू द पावर बीटा एक्स जो मिलेगा, वो मैंने जैसे बताया कि जब अल्फा और बीटा कॉन्जुगेट होते हैं, इन दैट केस f alpha and f beta are also complex conjugates. So beta e to the beta x you will get as conjugate of this alpha e to the power alpha x. And if
alpha e to the power alpha x is a plus ib, then beta e to the power beta x will be conjugate of this, that will be a minus ib. And if you add these two, means alpha plus ib, alpha e to the power alpha x and beta e to the power beta x, if you add these two, they are conjugate of each other, you will get only 2a. So what you have to do is that you just try to find the real part a of this alpha e to the power alpha x, and then your answer will be 2a. So what I have done, I have tried to find a here. What is a plus ib? A plus ib is nothing but alpha e to the power alpha x. So putting the value of alpha, that is minus 1 by 2 plus iota root 3 by 2 here, in this here for alpha and here also, okay, and then you try to separate it into real and imaginary parts. In this case of e to the power something, what I have told you in previous classes, I will do the same. First, I will separate these two terms, real and purely imaginary term. So e to the power minus x by 2 gets separated out, and remaining term is e to the power I root 3 by 2x. Then I use the famous Euler's formula, that is e to the power I theta equals cos theta plus iota sin theta. So e to the power I root 3 by 2x will be cos root 3 by 2x plus iota sin root 3 by 2x. Okay. Now, what you want here, you have to find a here, and then ultimately 2a is your answer. So you have to find the real part. The real part you will get if you multiply this term in yellow circle with this term, and this term with blue, because I square will be minus 1, that will be real, and minus 1 by 2 cos root 3 by 2x will also be real. The remaining things will be imaginary. So this is, you are getting a, and if you multiply 2 with this a, you are going to get your answer. Okay. The next question that was asked to me is this one. This is a very simple question. Given that sine of theta plus I phi is tan alpha plus I sec alpha, and you have to prove that cos 2 theta multiplied by cos hyperbolic 2 phi is 3. So it's a very simple, very easy solution. Sin theta plus I phi को real और imaginary parts में separate कर लेंगे. We will use sin a plus b, and if we use sin a plus b, then we also use cos of ix. And what is cos of ix? Cos of ix is going to be cos of hyperbolic x, and sin of ix is going to be I sin hyperbolic x, right? So if you just use these few important things here and then separate the real and imaginary part, you will get tan alpha as sin theta cos hyperbolic alpha and sec alpha also. Okay. What you have to prove? You have to prove cos 2 theta into cos hyperbolic 2 phi equal to 3. So you need an expression involving theta and phi. It means that you want to get rid of alpha. So the next aim is to eliminate alpha. And if sec alpha and tan alpha are given, then we can very easily eliminate alpha by using this well-known identity, that is sec square alpha minus tan square alpha equals 1. So what we do here, we just subtract, square and subtract, and then we get 1 as cos square theta sin hyperbolic square phi minus sin square theta cos hyperbolic square phi. But this will not do the purpose. Only this will not do the purpose, because we need a relation between cos 2 theta and cos hyperbolic 2 phi. So we have to use few very important and well-known formula from trigonometry and from this year's course also.
we know that cos square theta is 1 plus cos 2 theta by 2 using the formula for cos 2 theta. And here I have written formula for cos hyperbolic 2 phi that I have already told you. Cos hyperbolic 2 phi is this, and we know that cos hyperbolic square phi minus sin hyperbolic square phi is 1. So cos hyperbolic 2 phi is equal to 2 cos hyperbolic square phi minus 1, and there is another formula. Cos hyperbolic 2 phi is equal to, if you put cos hyperbolic square phi here, you are going to get 1 plus 2 times sin hyperbolic square phi, right? So here I'm going to put cos square theta, sin hyperbolic square phi, etc., etc. in terms of cos of 2 theta and cos of hyperbolic 2 phi. If I just put it here and do very simple calculations, I'm going to get 4 equals minus 2. Some terms get cancelled out, and this 2 cos 2 theta cos hyperbolic 2 phi remains. Solving this by taking minus 2 to the other side and then dividing by 2 will give you 3. Next question. The next question is that given that tan alpha plus I beta is equal to I, where alpha and beta are real numbers. They are real numbers. And you have to prove that alpha is indeterminate and beta is infinity. It is also a very simple question. There is a very simple trick, very important, easy trick that I want to share with you all here. That if, and I have already told you this, you can take conjugate both sides anytime. Because I have told you if alpha and beta, remember the first slide or the first question of this video, this is small video, that if beta is conjugate of alpha, or something like suppose Q is conjugate of P, then any expression of P, Fp and Fq will also be conjugate of each other. So here if you take conjugate here and here, that conjugate will directly affect this alpha plus I beta. So if you take conjugate both sides, you can simply write as tan of alpha minus I beta, and on the other side you will get minus I. Okay, now if you want to prove that alpha is indeterminate, it means that you are only focusing on alpha. And if you are only focusing on alpha, you need to eliminate beta. How can you do this? You can very easily do this by subtracting alpha minus I beta from alpha plus I beta. If you just subtract this alpha minus I beta from this, you get 2 alpha here. Taking tangent both sides, you get tan 2 alpha, and then using the formula tan of, you are taking tangent both sides, so tan of a plus b, and tan of a plus b is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. So on simple calculations, we get 0 by 0, and that is nothing but indeterminate form. We all know this. And if tan of something is in indeterminate form, then since tan will not give you indeterminate value until जो input है वो indeterminate हो जाए, तभी आपको ये value indeterminate मिल रही होगी. It means that 2 alpha, or you can say alpha, is of the form 0 upon 0, or is indeterminate actually. Now it remains to prove that beta is infinity. We had to prove two things: alpha indeterminate, beta infinity. How will you do this? You just, as you have added these two, now subtract. And if you subtract, you get alpha cancelled. So you get rid of alpha now. And you get 2i beta on the other side. Taking tan again both sides. And this time you are going to get tan of 2i beta equals I. But tan of ix is nothing but I tan hyperbolic x. So this gives you I tan hyperbolic 2 beta equals I. Now comparing imaginary parts, these are purely imaginary quantities. So you get tan hyperbolic 2 beta equals 1. And if tan hyperbolic 2 beta equals 1, then solving it by using using the definition of tan hyperbolic,
you get e to the power 2 beta minus e to the power minus 2 beta upon this equal to 1. And then taking this to the other side and cancelling out e to the power 2 beta both sides, you get 2 times e to the power minus 2 beta as 0, and that gives you e to the power minus 2 beta as 0, or you can say that e to the power 2 beta tends to infinity. Taking log both sides, you get 2 beta tends to log of infinity, and log of infinity nothing but it also tends to infinity. If 2 beta tends to infinity, then beta tends to infinity. Here, some very well-known things that I have used here is that, first of all, the value of e. The value of e is greater than 1. You can very easily search that. E is always greater than 1. What is the value of e? E is actually 1 plus 1 by factorial 2 plus 1 by factorial 3 and so on up to infinity. So this is the value of e. This is obviously going to be greater than 2 even. This is greater than 2. And something greater than 2 raised to the power infinity will give you infinity. So e to the power infinity is infinity, and if you take reciprocals both sides, you get e to the power minus infinity as reciprocal of this infinity, and that gives you 0, or that gives you a very small quantity that tends to 0. Now taking log both sides, and what is e to the 0? E to the power 0 is 1. If you take log both sides in these three cases, you get log of 1 as 0, log of infinity as infinity, and log of 0 as minus infinity. So I have just used here log of infinity as infinity. I am getting beta tends to infinity. So these were the 3 questions asked. Now I continue my lecture, or my previous lecture on vector calculus. So let us first have a quick recap or relook at what we discussed in the last turn. We started with the functions. Actually, we started with vector and scalar quantities. So there is nothing to tell again about that. You already are well equipped with those terms. Followed by, we discussed what are functions, then what are basically vector functions. After vector functions, we saw what are scalar fields and vector fields, or in other words, you can say scalar point function and vector point function. Let me again give you some examples of those. As you can see, fxyz as x square plus suppose y plus e to the z, or anything like into multiplied by sine xy. So this will give you output with the inputs of x, y, z, all of them. All of them are taken as inputs here. So it takes as inputs x, y, z, which is a point in 3D. So this is, and it gives output as scalar quantity. So this we defined as scalar point function, or we also call it scalar fields. Similarly, we define vector fields, and if g of x, y, z is a vector output giving function, it is a vector field. It is a vector field. For example, sine of y into x, suppose this is iota, I cap, not that is not that iota of trigonometry. Let us not mix these terms. E to the power z j cap xy k cap. So this is a simple example of vector field, and this is a very easy example of scalar field. Vector functions that we were discussing, for example, you can take r of t as sine t I cap plus 2t j cap minus t square k cap, where t belongs to some set of real numbers. It belongs to D, and D is a subset of R.
So this is a very simple, very easy example of vector functions. And if we want to do calculus on these vector functions, then keep in mind t will belong to some interval. t किसी ना किसी एक interval में belong करेगा. Suppose t belongs to a comma p, right? So this is what I told you in the last turn. I also told you how we differentiate and integrate these vector functions, and followed by some important differentiation formula. For example, we saw if phi is simply a function of t, for example t cube sine t, right? So if phi is if phi is a function, a scalar function of t, for example this, and suppose you take a, which is a vector function of t, such as these functions, and you want to differentiate phi a, then one method is there that you first multiply phi to a, and then you differentiate it component by component. Means the coefficient of phi differentiated separately, then coefficient of j differentiate separately, and then coefficient of k also differentiated separately. The other thing that you can use here that I told you is that it is phi dA dt plus d phi dt a vector. Okay, if phi is constant here, then d phi by dt will be 0, and you will get phi dA by dt. It's a very well known thing. Now, if we want to generalize this to triple products of vectors, we can do it, and we can easily prove also that d by dt of box ABC. Here, what is box ABC? Box ABC is nothing but, we know that it is A dot B क्रॉस C. ओके, और ये मैंने आपको लास्ट टर्म पे बोला भी था कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हैं, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. सिमिलरली वी हैव वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी है A क्रॉस B क्रॉस C, एंड इट इज इक्वल टू A C डॉट प्रोडक्ट to B minus A B C. Okay, so keep in mind these two, but not only this, also keep in mind the geometrical interpretation. This gives you volume of the parallelepiped. This gives you volume of the parallelepiped, of which 3 consecutive sides, 3 concurrent sides. कॉन्करेंट का मतलब जो एक ही पॉइंट से पास करते होंगे. जैसे आप एक पैरेललोग्राम बनाइए, मैं आपको बहुत सिंपल मैं आपको बता देता हूं कि पैरेललोपाइड का क्या मतलब होगा. लेट अस हैव अ पैरेललोग्राम, और जिस पैरेललोग्राम के 2 साइड्स जो होंगे, जो आप बेस में ले लेंगे एक तरीके से, सपोज वो दोनों साइड्स ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, जो कि इस पॉइंट ओ से ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं. नाउ यू टेक द थर्ड वेक्टर सी. Suppose this is the third vector C. ओके, कोई यहां पर इनका आपस में परपेंडिकुलर होना कोई जरूरी नहीं है. ये जैसे मैंने A और B भी परपेंडिकुलर नहीं लिए हैं. आई हैव मेड अ पैरेललोग्राम, नॉट अ रेक्टेंगल हियर. उसी तरह से मैंने C एक वेक्टर कॉन्करेंट हैं, तीनों एक ही पॉइंट से जा रहे हैं. नाउ इफ आई टेक 4 vectors parallel to C vector and each vector from these 4 corners of the parallelogram, इन चारों कॉर्नर्स से मैं इसी तरह से अगर मैं 4 वेक्टर्स ले लूंगा, और अगर इन चारों वेक्टर्स को भी मैं एक दूसरे से मिला दूंगा इस तरह से, तो एक जो शेप मुझे मिलती है, दैट शेप इज, एक तरीके से आप ये से कह सकते हैं कि जो आपने क्यूबॉइड पढ़ रखा है, उसी क्यूबॉइड को एक तरफ थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया, ऊपर से भी टिल्ट किया गया, और जो उसका बेस जो कि रेक्टेंगुलर होता है, वो भी बेस भी उसका रेक्टेंगुलर ना होकर के अब पैरेललोग्राम हो गया है.
ठीक है। सो दिस इज अ पैरेललोपाइड और इस पैरेललोपाइड का जो वॉल्यूम है वो ये बॉक्स एबीसी रिप्रेजेंट करता है। चलिए ये तो, और इसी तरह से ए क्रॉस बी क्रॉस सी की जब हम लोग बात करते हैं तो मैंने आपको इसको दिया था समझने के लिए, ज्योमेट्रिकली समझने के लिए, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी, the direction of B cross C according to the right hand thumb rule, ये B और C दोनों के परपेंडिकुलर होता है। आप अपने फिंगर्स को B पर रखते हैं, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को B पर रखते हैं और मुट्ठी को इस तरह से बंद करते हैं कि जो आपकी फिंगर्स हैं वो B से C की तरफ जाएं। और अगर आप सपोज करें कि B और C वेक्टर इस तरह से हैं और आपने अपनी फिंगर्स को यहाँ रखा और फिंगर्स को इस तरफ मुट्ठी बंद की, तो जो आपका थंब है जो कि ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा होगा, that thumb, the direction of thumb gives you the direction of B cross C. यहां जगह कम है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है B cross C. Okay, so direction of B cross C is perpendicular to both. ये दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, ये एंगल भी 90 होता है और इधर से जो एंगल है ये भी 90 होता है। सो परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर B एंड वेक्टर C। ठीक है। सो B क्रॉस C विल बी अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड C। और अगर उस वेक्टर का A के साथ क्रॉस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको वो आपको वेक्टर मिला था जो B और C दोनों के परपेंडिकुलर था, वापस जब आप उसका किसी और के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, देन यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू वेक्टर एंड दैट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड दिस, जो ये एक नया वेक्टर आपको मिला था उसके भी परपेंडिकुलर। और ये जो नया वेक्टर था ये किसके परपेंडिकुलर था? B और C दोनों के परपेंडिकुलर। तो अगर आप एक बार परपेंडिकुलर आपने लिया B और C दोनों का कॉमन परपेंडिकुलर और फिर उसका फिर से परपेंडिकुलर आप लेने की तैयारी में है क्योंकि यू आर अगेन टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, सो इसका मतलब ये हो गया कि आप वापस उसी प्लेन में आ जाओगे जिस प्लेन में B और C लाई करते हैं। ठीक है, जैसे आपने इस तरह से B लिया और इस तरह से आपने सपोज C लिया और दोनों एक ही प्लेन में है, मान लीजिए इस प्लेन में है, फिर आपने इनका B क्रॉस C किया। जब आपने इनका B क्रॉस C किया तो आप इस तरह से एक परपेंडिकुलर आपने ले लिया जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है, और फिर आप इस वाले वेक्टर का और किसी दूसरे या किसी और वेक्टर कोई आपके पास है A वेक्टर, आपने एक और वेक्टर लिया A वेक्टर, और ये जो आपका वेक्टर था ये वेक्टर है आपका B क्रॉस C वेक्टर, और आपने अब A और B क्रॉस C दोनों का जब फिर से क्रॉस प्रोडक्ट कराया, आपने जब A का और B क्रॉस C दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फिर से कराया तो फिर आपको उसी डेफिनेशन से एक नया वेक्टर मिलेगा जो कि इस A के पर भी परपेंडिकुलर होगा और B क्रॉस C के भी परपेंडिकुलर होगा। जब वो B क्रॉस C के भी परपेंडिकुलर और A के भी परपेंडिकुलर होगा तो वापस कहां आ जाएगा? वापस वो इसी प्लेन में आ जाएगा जिस प्लेन में B और C दोनों लाई करते थे। ठीक है। सो दिस इन दिस प्लेन इटसेल्फ दिस न्यू वेक्टर, दिस न्यू ट्रिपल प्रोडक्ट विल लाई। ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो इसी प्लेन में फिर से आ जाएगा। ठीक है। और अगर वो उसी प्लेन में आ जाएगा तो अगर आप उसको लिखना चाहेंगे तो आप उसको B और C के टर्म्स में लिख पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ये देखिए ये क्या है, ये है सपोज दिस इज लैम्डा, तो ये हो गया लैम्डा इंटू B, और सपोज दिस इज म्यू तो ये हो गया लैम्डा इंटू B प्लस म्यू इंटू C। तो ये किस किस वेक्टर के कॉम्बिनेशन में एक तरीके से आपने लिखा, आपने इसको B और C के पदों में या B और C के कॉम्बिनेशन में लिखा। इससे ये क्लियर होता है कि ये जो नया वेक्टर मिल रहा है वो किस प्लेन में लाई कर रहा है, वो उसी प्लेन में लाई कर रहा है जिस प्लेन में वेक्टर B और वेक्टर C लाई करते हैं। खैर, अब हम लोग वापस जहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो लेट अस सपोज दैट हियर वी हैव 3 vector quantities, and not only vector quantities, these are vector functions. So A is nothing but A is a function of t. Similarly, B is also a function of t and C is also a function of t. And if you want to find differentiation of this box ABC, what is this box ABC? It is A dot B cross C. Then बहुत एक सिंपल सा रूल है, जैसे आप लोग मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं, देन यू यूज फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, बिल्कुल उसी तरह से ये हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो एक बार आप करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी dA by dt करेंगे और B और C का नहीं करेंगे और बॉक्स में इसी तरह से लिखा रहने देंगे। फिर सेकेंड टर्म क्या आएगा, A dB by dt C, और फिर एक थर्ड टर्म भी आ जाएगा A
बी डी सी डी टी। क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग ए क्रॉस बी क्रॉस सी का करेंगे तो वहां पर भी आपको इस वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट के केस में भी आपको तीन टर्म्स मिलेंगे। पहला डी ए बाई डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी बी बाई डी टी क्रॉस सी और प्लस ए क्रॉस बी क्रॉस डी सी बाई डी टी। ठीक है, तो मैं इनके प्रूफ्स नहीं लिख रहा हूं, इसका प्रूफ बहुत आसान है। अगर आप हल्की सी हिंट अगर आप चाहें तो आपको मैं हिंट कर देता हूं। देखिए डी बाई डी टी एंड अगर आप ए बी सी बॉक्स ए बी सी की वैल्यू लेंगे तो ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर आप बी क्रॉस सी को थोड़ी देर के लिए एम मान लें, जो बी क्रॉस सी इसको आपने एम सपोज कर लिया, तो ये बन गया डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट एम। और उसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मैं ऑलरेडी लास्ट टर्म पे बता चुका हूं ये रूल। तो ये क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी डॉट एम प्लस ए डॉट डी एम बाई डी टी। और अब बताइए कि डी एम बाई डी टी क्या हो जाएगा। एम क्या है, एम इज बी क्रॉस सी, तो डी एम बाई डी टी करेंगे तो फिर एक बार आएगा डी बी बाई डी टी क्रॉस सी और प्लस एक बार आएगा बी क्रॉस डी सी बाई डी टी। तो कितने टर्म्स आ जाएंगे, तीन टर्म्स आ जाएंगे, है ना। एक टर्म ये प्लस दूसरा टर्म ये प्लस तीसरा टर्म ये। तो पहला टर्म आपका बन जाएगा डी ए बाई डी टी बी सी, इसी तरह से दूसरा ए डी बी बाई डी टी सी और तीसरा टर्म ए बी डी सी बाई डी टी। तो वेरी सिंपल प्रूफ, इट इज अ वेरी सिंपल प्रूफ फॉर दिस। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं एक दो, उनके बारे में बात करते हैं। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, द नेसेसरी एंड sufficient condition for the vector function at to be a constant is that dA dt is equal to 0. तो ये this is a very important result. The necessary and sufficient condition. Necessary and sufficient का मतलब ये होता है, अगर आप हिंदी में इसको चेंज करेंगे तो ये है आवश्यक, और sufficient का मतलब है पर्याप्त। इस तरह के रिजल्ट्स और इस तरह की लैंग्वेज आपको खूब मिलेगी, आपके अलजेब्रा के कोर्स में भी मिलेगी, काफी मिलेगी। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर समथिंग इज समथिंग, ये लैंग्वेज होगी। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर समथिंग, से समथिंग वन इज समथिंग टू। मतलब आपको दो बातें कही गई होंगी, पहली बात और दूसरी बात, और आपको ये साबित करना होगा कि necessary and sufficient condition for first thing is the second thing। जैसे यहां पर है the necessary and sufficient condition for the vector at, vector function at to be a constant, तो ये हो गया आपका something one, और ये जो दूसरी बात आपको लिखी हो गई ये हो गई something two। clear? So we have to prove that necessary and sufficient condition for this is this। मतलब ये कि अगर something one हो रहा है तो ये पर्याप्त है, तो ये sufficient है कि something two हो जाएगा, और अगर something two होना है तो ये आवश्यक है कि something one हो रहा हो। It means that for something two to hold, something one is necessary, and if something one holds, then it is sufficient for something two to also hold। हम इस तरह से भी कह सकते हैं इस बात को कि something one जब भी होल्ड करेगा, जब भी हो रहा होगा, तो something two हो रहा होगा, और जब something two होल्ड कर रहा होगा तो आपका something one भी होल्ड कर रहा होगा, राइट। सो दिस इज अ टू वे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन दीज टू कंडीशंस, राइट। तो अगर इसे आपको प्रूव करना है तो आप हमेशा क्या करते हैं, आप इसको प्रूव करने के लिए एक बहुत सिंपल वे है, आप मान लेते हैं लेट
something one holds, समथिंग वन होल्ड्स इस लैंग्वेज का मतलब है कि समथिंग वन सही है, देन ट्राई टू शो, क्या शो करने की कोशिश करेंगे कि समथिंग टू holds good. Holds good means, here I also write holds good. Holds good means it is correct. Okay, so if something one is correct, then try to show something two is correct, and vice versa. Vice versa मतलब इसका उल्टा भी करेंगे, मतलब समथिंग टू मानेंगे फिर समथिंग वन को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इसका प्रूफ भी हम लोग चलिए समझ लेते हैं। चलिए पहले एक तरफ से हम लोग नेसेसरी कंडीशन प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जैसा कि यहाँ कहा गया है पहले कि कंडीशन फॉर द वेक्टर AT टू बी अ कांस्टेंट इज दैट dA by dt इज इक्वल टू 0। तो पहले आप मान लीजिए, लेट प्रूफ, so let AT be a constant function। आप जानते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dA by dt क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है dA by dt 0 हो जाएगा। और उसके बाद में अगर ये कह रहे हैं कि dA by dt 0 है, let dA by dt is 0। if dA by dt is 0, then अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझना चाहें तो मैं आपको चलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है ना डिफरेंशिएशन का, वहां से समझा देता हूं। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो a t प्लस h ये किसके इक्वल होगा, a ऑफ t के। So if you take limit a t plus h minus a t divided by h and limit h tend to 0, तो जब आपका a t plus h और a t इक्वल हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0, और वो भी 0 वेक्टर। तो यहाँ पर भी मैं 0 वेक्टर लगा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वेक्टर माइनस वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया। और अब आप लेट करेंगे, सपोज करेंगे कि dA by dt 0 है। सो 0 है अगर dA by dt, तो 0 होने का मतलब हुआ 0i प्लस 0j प्लस 0k, राइट। और अगर आप वेक्टर a के 3 कंपोनेंट्स लेते हैं, a1 प्लस a2j प्लस a3k, तो यहां पर dA by dt का 0 हो जाने का क्या मतलब हुआ, चाहिए। तो यहां पर dA by dt का 0 हो जाने का मतलब हुआ, 0 मतलब 0 वेक्टर हो जाने का मतलब हुआ कि तीनों कंपोनेंट्स आपके इक्वल 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 होंगे, तो dA1 by dt विल बी 0, similarly dA2 by dt will be 0 and dA3 by dt will also be 0. It means that A1 will be C1 constant, A2 will be C2। ये तो आप लोग पहले से आपको पता है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कैलकुलस लगाई मैंने, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगाया। और अगर ये A1 A2 A3 की वैल्यूज आप A में रख दोगे तो जो AT का फंक्शन था वो बेसिकली A1 जो आया वो C1 आया जो कि कांस्टेंट आया। सो C1i प्लस C2j प्लस C3k, एंड ये अल्टीमेटली कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट i प्लस कांस्टेंट j। तो ये तो एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और अगर वो पॉइंट कांस्टेंट है C1, C2, C3, तो उसका पोजीशन वेक्टर भी कहीं इधर उधर जाने वाला नहीं है। सो दैट थिंग इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एक दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जैसे कि मैं बता देता हूं बहुत ही शॉर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। The necessary and sufficient, शॉर्ट में मैं necessary and sufficient condition
फॉर constant magnitude is that a dot dA by dt is 0. This is a very good result. बहुत ही अच्छा रिजल्ट है. तो समझते हैं पहले कि ये रिजल्ट कहना क्या चाहता है, और समझने के साथ साथ में एक एग्जाम्पल भी लेते हैं. ठीक है, चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं. AT इक्वल्स cos t I cap प्लस sin t j cap प्लस suppose you take 2 times k cap. ठीक है, तो अगर यहां पर आप बात करें इस AT की, तो इफ यू फाइंड मैग्नीट्यूड, अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t प्लस 4. What is cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t? It is equal to 1 and 1 plus 4 is 5. तो आप लोगों को क्या मिला? आप लोगों को मिला स्क्वायर रूट ऑफ 5. So magnitude of AT is nothing but it is square root of 5. आप ये सोचिए कि क्या AT जो था वो t के बदलने के साथ साथ बदलता था कि नहीं. तो ये अगर हम बात करें वेक्टर फंक्शन AT की, तो ये तो t पर डिपेंड कर रहा था. अगर आप t की आप जस्ट चेंज करिए, आप एक काम करिए, a को फाइंड करिए जब t 0 है, तो व्हेन t is 0 you will get I plus 2k. ओके, और जब a को आप फाइंड करेंगे पाई बाई 2 पर, तो cos पाई बाई 2 0 हो जाएगा, तब आएगा j प्लस 2k. आया. इसी तरह से अगर आप किसी दूसरे तीसरे वैल्यू पर, अलग वैल्यू पर डिटरमाइन करेंगे, तो आपको a की वैल्यू हर जगह सेम मिलेगी? नहीं, अलग अलग वैल्यू मिलेगी. t को आप पाई बाई 3 रखिए, अलग मिलेगा. लेकिन इन सभी केसेस में इफ वी टेक द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हमेशा 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही मिलेगा. तो मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करें, तो इट इज फ्री ऑफ t. इसमें t नहीं आ रहा है. इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ t, इट इज अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू t, जहां पर ये फंक्शन t का फंक्शन था. सो वही बात यहां पर हो रही है. द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर AT टू हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज दैट a डॉट da by dt 0. एक काम करते हैं, हम लोग इसमें a डॉट da by dt की वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आ रही है. ठीक है, सॉरी. ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर a डॉट da by dt करें, तो हम लोगों को मिलेगा a डॉट da by dt. एक इसका da by dt भी हम लोग कर लेंगे, तो हो जाएगा cos t I कैप प्लस sin t j कैप प्लस 2k, राइट. और जिसका da by dt के साथ da by dt कितना आएगा? वो आएगा माइनस sin t I कैप और प्लस cos t j कैप, और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया. और अल्टीमेटली आप देखिएगा तो आपको मिलेगा cos t माइनस cos t sin t और प्लस cos t sin t, सब मिला के 0 ही आने वाला है. ठीक है, तो यहां पर a डॉट da by dt 0 हो रहा है. क्लियर. तो आपने यहां पर एक तरीके से वेरीफाई कर दिया, आपने एक वेरिफिकेशन किया है, आपने ये सत्यापित कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है कि ये रिजल्ट सही है एक तरफ से, कि अगर हम लोग a का जो डायरेक्शन है, सॉरी मैग्नीट्यूड है, अगर उसको कांस्टेंट ले रहे हैं फंक्शन के मैग्नीट्यूड को, तो a डॉट da by dt 0 हो रहा है. हम लोगों को इस रिजल्ट को प्रूव करना है नेसेसरी एंड सफिशिएंट, मतलब दोनों तरफ से. ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं कैसे करना होगा. इसे एक आसान सा रिजल्ट है. देखिए, अगर हम लोग एक काम करें, a के साथ डॉट कर दें, तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है a मैग्नीट्यूड a इंटू cos 0. cos 0 1 होता है, तो सीधे सीधे हम लोगों को मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर मिलता है. ठीक है, और आप जैसे एक तरफ से प्रूव कर रहे हैं, तो आपने शुरुआत में क्या माना? सपोज आपने माना कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो आप यहां लिखेंगे लेट वेक्टर AT हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. मतलब पहले आपने एक समथिंग 1 को आपने मान लिया कि माना ये हो रहा है कि वेक्टर AT का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. इफ दैट इज कांस्टेंट, तो ये जो आया ना, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही तो है, तो ये कांस्टेंट हो गया. और अगर ये कांस्टेंट है और आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको इधर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? 0.
और इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, dA बाई डी टी डॉट ए प्लस ए डॉट dA बाई डी टी इज इक्वल टू 0। और ये बन गया आपका a डॉट बी और b डॉट ए सेम होते हैं, तो ये हो गया 2 टाइम्स a डॉट dA बाई डी टी इज 0, सो इट गिव्स यू a डॉट dA बाई डी टी इज एज 0। देखिए प्रूव हो गया, ठीक है। लेकिन अभी आपने समथिंग 1 की मदद से समथिंग 2 को प्रूव किया है। अब आपको वाइस वर्सा या कन्वर्सली, अब आप बीच में लिख सकते हैं कन्वर्सली। कन्वर्सली का मतलब कि अब आप इसी का अपोजिट प्रूव करने जा रहे हैं। तो अब आप क्या मानेंगे, अब आप मानेंगे कि ये सही है, मतलब ये होल्ड कर रहा है, a डॉट dA बाई डी टी इज इक्वल टू 0। और क्या प्रूव करने की कोशिश आपकी रहेगी, आपकी प्रूव करने की कोशिश रहेगी कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। बहुत आसान, मैं बिल्कुल उसी तरह से करता हूं इसको। देखिए a डॉट dA बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो dA बाई डी टी डॉट ए की वैल्यू क्या होगी, वो भी 0 होगी। तो अगर उसी में मैं dA बाई डी टी डॉट ए ऐड कर दूं तो भी ये 0 प्लस 0 यानी कि 0 ही रहेगा, ठीक है ना। और ये क्या बन गया, ये बन गया d बाई डी टी ऑफ वही a डॉट ए, डी बाई डी टी ऑफ a डॉट ए, और वो कितना है, वो 0 है। और ये क्या हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कांस्टेंट है। और अगर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। क्लियर हो गया। सो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको वेरीफाई भी करके दिखाया है और प्रूव भी करके दिखाया है। अगर आपको प्रूव करने को एग्जाम में आता है बाय चांस, तो फिर आप लोग ये वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा। प्रूफ ये होता है, वेरिफिकेशन में आप एक एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह का एक और रिजल्ट है, वो भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको होमवर्क में दे दे रहा हूं। चलिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर AT to have constant direction। पिछले वाले में क्या कांस्टेंट था, मैग्नीट्यूड, और इस वाले में क्या कांस्टेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर फंक्शन की दो ही चीजें हो सकती हैं, मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो इस बार हम लोग नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन देख रहे हैं वेक्टर फंक्शन AT के डायरेक्शन को कांस्टेंट होने की, और वो क्या है, इज दैट, पिछली बार क्या था, a डॉट dA बाई डी टी इज 0, इस बार है a क्रॉस dA बाई डी टी इज 0, ठीक है। वेरिफिकेशन में आपको बुक में नहीं मिलेगा, वेरिफिकेशन में यही समझा दे रहा हूं, और प्रूफ आप इसको एक बार जरूर कर लीजिएगा अपने होमवर्क में। तो मैं बहुत आसान सा एक एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर डायरेक्शन कांस्टेंट रखना है। तो ये ध्यान रखना होगा कि एक डायरेक्शन अगर कांस्टेंट है एक फंक्शन का, तो इसका मतलब अलग अलग पॉइंट पर उसका क्या चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। क्लियर। तो अगर ए का डायरेक्शन सपोज कीजिए कि किसी दिए हुए वेक्टर के डायरेक्शन में अगर है, जैसे कि टी आई, अगर कांस्टेंट डायरेक्शन है तो मैं ऐसे करता हूं, अगर कांस्टेंट डायरेक्शन है इसका मतलब हुआ कि ए हमेशा पैरेलल होगा, ए हमेशा पैरेलल होगा किसी एक दी हुई दिशा के, कांस्टेंट दिशा के, ठीक। और अगर वो किसी कांस्टेंट डायरेक्शन के पैरेलल होगा, सपोज सीटी, तो यहां पर ये जो सीटी है, ये जो दिशा है ये कांस्टेंट हो गई। क्लियर। या आप कह सकते हैं ये वेक्टर ही कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वेक्टर होगा, एक सीटी एक कांस्टेंट वेक्टर है यहां पर, राइट। और ए क्या, उसके हमेशा ए का डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट, तो वो इस दिए हुए वेक्टर के, जो कि कांस्टेंट वेक्टर है, हमेशा उसके पैरेलल ही रहेगा। टी के चाहे जो वैल्यू रखें, जो उसका कांस्टेंट डायरेक्शन है टी का, तो कभी हो सकता है किसी टी के लिए वो इतना ही बड़ा हो, किसी टी के लिए वो इतना बड़ा हो जाए, किसी टी के लिए वो इतना बड़ा हो जाए। ये सभी जो है ये सी के पैरेलल रहेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक। तो आप यहां पर जब आप AT लिखोगे तो कैसा लिखोगे, तो आप लिखोगे CT इंटू लेमडा, और वो लेमडा अलग अलग, मतलब लेमडा की वैल्यू जो है वो टी पर डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी, सोचिए।
बिल्कुल करेगी। इसलिए करेगी क्योंकि देखिए ct को आपने यहां पर पूरी तरह से क्या ले लिया है, ct को आपने यहां पर पूरी तरह से कांस्टेंट वेक्टर ले लिया है। आप साथ में जब लैम्डा मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैग्नीट्यूड को बदलने का काम करेगा, और मैग्नीट्यूड तो बदल ही सकता है अलग अलग t के लिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट नहीं किया है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं लैम्डा t, ठीक। और हाँ, यहां पर मुझे एक करेक्शन करना होगा, और वो एक इंपॉर्टेंट करेक्शन ये है कि मुझे यहां से t को हटा देना चाहिए, और यहां से भी t को हटा देना चाहिए, और यहां से भी। क्यों हटा रहा हूं? इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है। भाई जब आप कह रहे हो ना कि जब मैं कह रहा हूं कि ए एक किसी दिए हुए दिशा में, किसी दिए हुए डायरेक्शन में होगा या उसके पैरेलल होगा, तो वो जो दिया हुआ डायरेक्शन है या जो वेक्टर है वो तो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब है वो t के बदलने के साथ नहीं बदलना चाहिए। तो हियर c इज नॉट अ फंक्शन ऑफ t, c इज अ कांस्टेंट, और जो मैग्नीट्यूड है लैम्डा t वो बदल जाएगा, वो बदलता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको यहां से यहां पे यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, a क्रॉस da बाई dt करोगे तो c चूंकि एक कांस्टेंट वेक्टर है तो आपको सीधे सीधे d लैम्डा बाई dt, और c का तो डिफरेंशिएशन वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई? और साथ ही साथ में अगर आप यहां पर a की वैल्यू भी रख देंगे, a क्या है, ये तो मैंने da बाई dt की वैल्यू रखी, दिस इज da बाई dt। और अगर a की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है लैम्डा c। तो क्या मिला आपको, आपको मिला लैम्डा d लैम्डा बाई dt, और इधर c, और इधर भी c, और बीच में क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, c क्रॉस c क्या हो जाएगा, c क्रॉस c 0 हो जाएगा। तो देखिए मैंने प्रूव भी कर दिया एक तरीके से। और जो मैं एग्जांपल लेके इसको समझाना चाहता था, वो एग्जांपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि इसी तरह का एग्जांपल लेना होगा, जैसे कि टी स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस 2j प्लस के। तो देखिए ये हो गया c कांस्टेंट, और साथ में टी स्क्वायर जो कि लैम्डा टी, ये टी स्क्वायर की जगह e टू द पावर t भी ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो करते रहेंगे, और वेक्टर कैलकुलस में जितना मैंने पढ़ाया है, जो काम दिया है, उसको आप रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।